Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss about blood vessel. Blood vessel is one of the component of human circulatory system. Because the blood flows in the vessels, that's why our circulatory system is a closed circulatory system. Study of blood vessel is called as a angiology. Study of blood vessel is called as a angiology. So, in human circulatory system, there are three types of blood vessels are present, and these blood vessels are arteries, veins, and capillaries. In human being, there are three types of blood vessels are present, and these blood vessels are arteries, veins, and capillaries. Now, we first talk about arteries. What are arteries? Arteries are the blood vessels who carry oxygenated blood away from the heart towards body parts. Arteries are the blood vessels who carry oxygenated blood away from the heart towards body parts. ये ऐसे वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाते हैं towards the body parts. These arteries are originated from the heart. Arteries are originated from the heart, and they originated in the form of larger blood vessels, in the form of aorta. These arteries, they divide and redivide into arterioles. Means arteries का जो division होता है उसको हम कहते हैं arterioles. These arterioles are again divide and redivide into कैपिलरीज. आर्टरीज के ब्रांचेस है. कौन कौन से ब्रांचेस है? आर्टरीज ये डिवाइड होते हैं और रीडिवाइड होते हैं एंड दे फॉर्म्स आर्टेरियोल्स. आर्टेरियोल्स अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड दे कन्वर्ट इनटू कैपिलरी. So these arteries, they usually runs in the deeper part of the body and they are thick, highly muscular and elastic. Arteries always carry oxygenated blood. Arteries always carry oxygenated blood except pulmonary artery who carry deoxygenated blood. जितने भी आर्टरीज होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी हु ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो आर्टरीज होते हैं ये थिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इलास्टिक होते हैं. बिकॉज दे हैव इलास्टिक वॉल, दैट्स व्हाई द मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये इलास्टिक होते हैं और इनके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने की वजह से द डायमीटर ऑफ आर्टेरियोल इट में वेरी, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं. एंड ड्यू टू दिस रीजन द फ्लो ऑफ ब्लड दे ऑल्सो एक्सेलरेट ड्यू टू द either decrease or increase in the diameter of these blood vessels. Let's talk about the histological structure. आर्टरीज का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हिस्टोलॉजी में हमारे सिलेबस में हम देखेंगे अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसफर व्यू से हमारे आर्टरीज किस तरह से दिखाई देते हैं. इन द टीयर्स यू कैन सी द आर्टरीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. जो आर्टरीज होते हैं इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, आर्टरीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स एंड द 3 लेयर्स आर द outermost layer is called as a tunica externa. The outermost layer of artery is called as a tunica externa, or it is also called as a tunica adventitia. This is the layer who are made up of fibrous connective tissue. अगर हम आर्टरीज को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो हमको इसके 3 लेयर्स दिखाई देते हैं और ये जो 3 लेयर है इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है दैट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ टूनिका एक्सटर्ना और टूनिका एडवेंटिशिया हु आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. Whereas the middle layer, जो इसका middle layer होता है, that middle layer is called as a tunica media, who are made up of smooth muscle fiber, who are actually elastic in nature, who makes the artery elastic. यानी
जो मिडल लेयर होती है आर्टरीज की, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ टूनिका मीडिया, एंड दिस टूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। ये स्मूथ मसल फाइबर से बने होते हैं एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। एंड द इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, जो सबसे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन होता है आर्टरी का, दैट इनरमोस्ट मेम्ब्रेन इज called as a tunica interna. The innermost membrane of artery is called as a tunica interna, who is made up of flat endothelial cell. Tunica interna is made up of flat endothelial cells. This flat endothelial cell itself has a इलास्टिक कोटिंग। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर इलास्टिक कोटिंग होती है। एंड फाइनली अ लुमेन इज प्रेजेंट एंड इन दिस लुमेन ब्लड फ्लोस। सो इट इज अबाउट आर्टेरीज। आर्टेरीज ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड दे एंड्स ऑन द बॉडी पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। जब ये बनते हैं तो इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। दे ओरिजिनेट एज अ ह्यूज ब्लड वेसल जिनका डायमीटर ज्यादा होता है, बट दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू कन्वर्ट इनटू कैपिलरीज, यानी आर्टेरीज जो होते हैं वो कैपिलरीज में एंड करते हैं, पर कैपिलरीज एक्चुअली responsible for transformation or exchange of material to the cell. अब हम देखेंगे the next blood vessel is vein. Veins. Veins are the blood vessel who carry deoxygenated blood towards heart, away from body parts. Veins are the blood vessels who carry deoxygenated blood towards heart, away from body parts. All the veins, they carry deoxygenated blood except pulmonary vein, who carry oxygenated blood. यानी जितने भी बॉडी में आप वेन्स देखोगे वो सारे वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. These veins are superficial. They flows, they runs in the superficial or most probably they are very close to the skin. ये स्किन के बहुत ही करीब होते हैं, इस वजह से वो थोड़े से विजिबल यानी कि एक्सटर्नली भी हमको दिखाई देते हैं. So these veins are thin walled, less muscular and inelastic. ये thin walled होते हैं, less muscular होते हैं and less elastic. These veins are originate in the form of capillaries. इनका जो origin होता है वो fine vessel से होता है, that they originate from in the form of capillaries and they ends in the form of larger vessels. क्यों? कि वेन्स जो होते हैं वो कैपिलरी से ओरिजिनेट करते हैं और ये जो कैपिलरीज होते हैं दे गेट यूनाइटेड, ये यूनाइट होते हैं एंड दे फॉर्म वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स गेट यूनाइटेड टू फॉर्म्स वेन्स एंड द वेन्स गेट यूनाइटेड टू फॉर्म वेना केवा एंड फाइनली वेना केवा pour deoxygenated blood into the heart. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो वेन्स होते हैं उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है. तो ये जो वेन्स होते हैं इनका ओरिजिन किसके फॉर्म में हो रहा है, कैपिलरीज के फॉर्म में हो रहा है. ये कैपिलरीज के फॉर्म में ओरिजिन होते हैं, ये दे गेट यूनाइटेड, ये यूनाइट होते हैं और ये बनते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू वेन्यूल्स. These venules get united to form veins and union of vein is a vena cava. These vena cava who collected deoxygenated blood from all the body parts, they pour the deoxygenated blood into the heart. So this is the way of circulation through which the veins carry deoxygenated blood from body parts towards heart. ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक लेकर जाते हैं. तो इनका जो ओरिजिन होता है वो स्मॉलर वेसल्स के फॉर्म में होता है और इनका जो एंड होता है वो लार्जर वेसल के फॉर्म में होता है. अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, अगर हम वेन्स का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इनका भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है आर्टेरीज की तरह. इन द ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप वेन्स का ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो वेन
अगेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स लाइक arteries, ये भी 3 लेयर से बने हुए हैं and the 3 layers, out of the 3 layer, outermost is called as a tunica externa, the middle layer is called as a tunica media and the innermost layer is called as a tunica interna. If you observe both the structure in the both the transverse section, you may see that the middle layer in case of artery, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो आर्टेरीज का मिडल लेयर होता है वो थिक वॉल्ड होता है क्योंकि यह स्मूथ मसल फाइबर से बना है, इलास्टिक फाइबर से बना है और इनका जो थिकनेस है यहाँ पर ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू आर्टेरी आप देखोगे तो ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं या फिर आप लेस मस्क्यूलर भी कह सकते हो। दिस टुनिका मीडिया इन केस ऑफ वेन इट कंटेन वेरी लेस amount of muscles, तो ये thin walled होते हैं, whereas the inner layer is tunica interna, again made up of endothelial cell. The second difference between artery and vein in terms of their structure, that the vein have larger lumen. इनका जो लूमेन का साइज होता है एज कंपेयर टू आर्टेरी का जो लूमेन है वो छोटा होता है और वेन का जो लूमेन है वो बड़ा होता है और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड द वेन्स walls are present who prevent backflow of blood, who regulate flow of blood, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और उसको बैकफ्लो होने नहीं देते और इसी वजह से वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं who are lacks in the arteries. Now the third types of blood vessel is capillaries. कैपिलरी का अगर हम देखेंगे तो इसको सबसे पहले माल्फी जी ने 1661 में डिस्कवर किया था एंड दीज कैपिलरीज आर एक्चुअली वेरी थिन वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। ये एक बहुत ही फाइन ब्रांच होते हैं ब्लड वेसल के एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज lacks all the walls. Tunica externa, tunica media are totally absent. Only one layer is present, that is tunica interna, which is internally lined by endothelial cell. ये जो कैपिलरीज होते हैं इनके पास सिर्फ एक ही वॉल होता है and that wall is tunica interna and it has a lumen, a narrow lumen is present. अब ये जो narrow lumen है, this is endothelial cells. ये जो लूमेन है इनका जो साइज आप देखोगे तो साइज ऑफ द लूमेन इज रेंज फ्रॉम 7.5 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन। इनका जो डायमीटर होता है वो रेंज करता है 7.5 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन एंड दीज आर परमिएबल। ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं या फिर जो वॉल्व होता है टुनिका इंटरना, इन केस ऑफ कैपिलरीज, these capillaries are having permeable membrane. They are permeable to water and the smaller molecules. The exchange of material is only through the capillaries. Capillaries are responsible to unite venules with the arteries. ये क्या करते हैं? venules को यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिलरीज जब यूनाइट होते हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं और कैपिलरीज किसका डिवीजन होते हैं? आर्टेरियोल का। यानी ये आर्टेरियोल को वेन्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी आर्टेरीज को ये वेन्स के साथ कनेक्ट करने वाले फाइन ब्रांचेस होते हैं ब्लड वेसल का। और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड का, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है एलिमेंट का थ्रू द ब्लड इज एक्चुअली थ्रू द कैपिलरीज। क्यों? कि कैपिलरीज के जो वॉल्व होते हैं वो परमिएबल होते हैं। द वॉल ऑफ कैपिलरी आर परमिएबल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर।